previously a member of the Royal College of Surgeons of England and Glasgow, and a member of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan. So we will be talking about the drug used in the respiratory system. Here is a scenario. First of all, I would like you to take a look at that scenario. A 26-year-old woman with a history of asthma presents to the emergency room with 3 days progressive wheezing and shortness of breath after an upper respiratory tract infection. She is taking inhaled albuterol and an over-the-counter medication for her cold symptom. Her respiratory rate is 28 per minute. Just note down, आपका रेट कितना होता है और इसका रेट कितना है. And her pulse is 110 per minute. आपकी पल्स कितनी है, इसकी पल्स कितनी है. She is afebrile, उसको फीवर नहीं है. Her right nasal turbinate is edematous and erythematous. I hope you have the idea of the turbinate की process. आपने पढ़ा होगा anatomy में. There is evidence of the wheezing throughout both of her lungs, but no crackles are noted. Supplemental oxygen by the nasal cannula is administered. What should be the next appropriate treatment? अब just एक पिक्चर ले हैं, एक लेडी है, वो डिस्ट्रेस में है, सांस नहीं आ रहा, आप ट्रीट कैसे करेंगे? She is likely having an acute exacerbation of the asthma, acute attack of the asthma. ये बहुत आपको देखने को मिलेगा. What is the treatment of the choice in this patient? What are the bad prognostic indicators in the patient? जब हमारा ये लेक्चर खत्म होगा तो at the end we will be able to talk about the 3 points. So here is a brief summary. We will talk about the introduction to the asthma, the etiology, pathophysiology, symptoms, diagnosis, and the treatment options. And what are the standard learning objectives? The SLOs. The SLO means कि topic हमारा क्या है? Pharmacology है. Respiratory medicine की pharmacology है. The subject is the pharmacology and the therapeutics. Actually the participants actually जो हमें जो है बात करते हैं कि 35 होना चाहिए, but we have a class now. So at the end of the lecture, we would be able to identify a patient of the asthma. We would be able to define asthma. We would be able to define the etiology and the pathophysiology, the causes, the signs, symptoms, and the treatments. So what is the asthma? आप में से को मुझे बता सकता है कि asthma क्या होता है? कुछ थोड़ा बहुत को आइडिया दे दें इस बारे में. एलर्जी है, ओके. So it is a disease characterized by the inflammatory hyperreactivity of the respiratory tree due to the various stimuli. And there are 3 principal processes. Actually, it is an obstructive process. There will be 3 principal processes. 1, mucosal inflammation. जहाँ पे inflammation होती है, वो चीज़ हमेशा thick होती है. Second, muscular constriction. कि मसल में बैठे वहाँ पे hyperplasia होता है. जो air देगा वो जो passage है वो और narrow हो जाएगा. And third, excessive secretion of thick mucus. तो एक चीज है जो ऑलरेडी तो नैरो हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से और नैरो हो गई, मसल से और नैरो हो गई, और उसके अंदर वहाँ पे सिक्रीशन आ गई. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? देयर विल बी प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग. ठीक है. तो these 3 processes are collectively known as the asthma. हम थोड़ी सी इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं. It's a beautiful picture. It's a normal bronchiole. It's the asthmatic bronchiole. Can you appreciate that? देखें, आप यहाँ पे गालबन के स्लाइड पे जैसे आप यहाँ देख नहीं पा रहे, ये हल्का सा इन्फिल्ट्रेट किया यहाँ पे, ये ग्रेन्यूल से आपको दिखाई दे रहे होंगे. ये इन्फ्लेमेशन है. ठीक है. These are the secretion और very thick है. देखें, ये वो ड्रॉप नहीं कर देंगे,
वेरी थिक, एंड थर्ड ये मसल देखिए हाउ थिक इज दैट। तो आपको अगर ये तीन चीजें आपके ज़हन में आ जाए तो आपको ये पता होगा मैंने कौन कौन सी चीज को ट्रीट करना है। व्हाट इज द एटियोलॉजी? एटियोलॉजी से क्या मुराद होती है? व्हाट इज द रीजन? तो देयर मे बी इंट्रिंसिक रीजन और द एक्सट्रिंसिक रीजन। द इंट्रिंसिक आर दोज व्हिच आर इनेट एंड द एक्सट्रिंसिक वंस आर दोज व्हिच आर यूजुअली एलर्जिक और एटोपिक। एटोपी इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ द एलर्जी। तो आई होप कि आपने कि पैथोलॉजी में ये पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। अगर मैं इंट्रिंसिक में कॉजेस की बात करूं, कौन कौन से आपके ज़हन में आते हैं? म्यूटेशन तो बाद में जाके आएगी ना बेटे, वो तो एक्सटर्नल है, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। उसे क्या उसे आप कहेंगे? ऑटोइम्यून कह सकते हैं। इमोशनल जब इंस्टेबिलिटी होती है उससे हो सकता है कि जैसे आप बाद लोगों को आप वो देखते हैं कि उन्हें एकदम से बैठे बैठे सांस खराब हो जाता है उनका, ठीक है। थर्ड में क्या होता है? एक्सरसाइज है, उसने एक्सरसाइज और फेंट हो गया, ठीक है। सेकंड जो है वो दो होते हैं, दीज आर द एलर्जिक रीजंस, ठीक है। तो एलर्जिक के बेटे कोई ना कोई एटियोलॉजी होना वहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना। दीज में बी अ ड्रग, अ पोलन और anything that can cause an inflammatory reaction। क्या चीज आपके ज़हन में आती है उससे? हाँ जी बेटा, क्या चीज आपके ज़हन में आती है? सी फूड कौन शौक शौक से खाता है? सी फूड कौन शौक से खाता है? अक्सर जो लोग होते हैं वो सी फूड नहीं खा सकते, ठीक है। वो शेलफिश नहीं खा सकते, वो झींगे नहीं खा सकते। जब वो खाते हैं उन्हें इतना इंटेंस किस्म का उनको रिएक्शन होता है कि वो उनको साथ ही आपको जो फर्स्ट एड देनी पड़ती है, तो अदरवाइज दे विल एक्सपायर, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस। या जो फूल होते हैं मौसम बहार में, पोलन होते हैं, या कोई ड्रग हो सकती है, एनी ड्रग, पेनिसिलिन हो सकती है, एनसाइड हो सकते हैं, एस्पिरिन हो सकती है, बीटा ब्लॉकर हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑब्वियसली जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ पे इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो अदर जो आपके सिम्टम्स हैं, अगर ये एलर्जी से कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को सांस खराब होता है साथ में नाक से आँख से पानी भी आ रहा होता है, बाकियों को नहीं होता, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। So it is accountable for more than 5,000 deaths in USA। और पाकिस्तान में बेटा ये तादाद 1 लाख के पास है, 0.1 मिलियन पर ईयर। तो it is a common disorder which is characterized by the airway inflammation and hyper-responsiveness to the stimuli that produce the bronchoconstriction। तो 2 टाइप्स की हमने बात की थी, one was the intrinsic one was the extrinsic one। Now we will talk about the pathophysiology। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है कि हमने ये तो बात कर ली कि वहाँ पे जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव वहाँ पे लंग डिजीज हो गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव के पैटर्न का तो आपको पता होगा ना कि क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव का और इसका रिस्ट्रिक्टिव का तो आपको पता है ना क्या है? पता क्या है? एनीवन देखें, जो रेस्पिरेटरी ट्री है ना, नोज है और नेज़ोफेरिंक्स है, उसके बाद ट्रेकिया है, फिर ये ब्रोंकाई है, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर एल्वियोलाई है। अगर इनके अंदर जो है वो कहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो दीज आर द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। लेकिन इनके बाहर फेफड़ा भी तो मौजूद है ना, सॉफ्ट टिश्यू भी तो मौजूद है ना। अगर इस एयर के पैसेज के बाहर को मसला हो, इट इज द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रेस्ट्रिक्टिव
रेस्ट्रिक्टिव कीलर डिजीजेस आपके ज़हन में कोई एग्जांपल आती है कोई कि जो लोग ना ये मिलों वगैरह में काम करते हैं? यस, अच्छा जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन द अस्थमा। ग्रॉसली हम 3 क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं। वन आर द ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड आर द एंटी इंफ्लेमेटरी एंड थर्ड आर द ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। ठीक है, हम ग्रॉसली ब्रोंकोडायलेटर को हम अगर 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं कि वन आर द बीटा 2 एगोनिस्ट, या आप इसको सिंपल आप बीटा एगोनिस्ट कर लीजिए। अदर आर द मस्किनिक ब्लॉकर एंड थर्ड आर द मिथाइल xanthines। दे आर ऑल क्लासिफाइड एज द हेडर ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, द बीटा 2 agonists include the albuterol, toluene and salmeterol. M blocker include the ipratropium। ये सिर्फ जो प्रोटोटाइप्स के सिर्फ हमने यहाँ पे नाम बताए हुए हैं, हर ड्रग पे यहाँ पे नाम नहीं बताया हुआ। और ये मिथाइल xanthines ये तो आप सबके इलम में होगा, है आपके इलम में कोई मिथाइल? आज कॉफ़ी नहीं पी के चाय पी थी, उसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन भी जो होती है बेटे ये मिथाइल xanthine की एक फॉर्म है। अदर आर द थियोफाइलिन एंड द थियोब्रोमीन। Second are the anti-inflammatory, mast cell stabilizer and the steroids. And third are the leukotriene modifier। अब मैंने आपसे कहा था चाहे एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या आगे वाली चीज़ों को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, one are the lipoxygenase inhibitors, enzyme inhibitors, and the other one are the leukotriene antagonists। ठीक है, तो ये बेटे उसी की क्लासिफिकेशन को हमने थोड़ा सा डायसेक्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ एक चीज ऐड कर लीजिएगा जो कि एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज एक एक्सीलेंट चीज है बट आम ही अवेलेबल नहीं है। ओके, हम बिल्कुल शॉर्ट सी बात कर लेते हैं इसकी कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एक्सेसरबेशन। आपके ज़हन में क्या आता है कि आपको इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, उसकी साइन सिम्टम्स को आप देखें, उसे आप कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले आप उसको कंफर्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन देंगे। उसको जो है एसिडोसिस है ना, आप उसे ऑक्सीजन देंगे। ओके, देन क्या उसमें है क्या उस एसिडोसिस में? एक तो उसकी पीएच कम है ब्लड की, सेकंड उसमें CO2 ज्यादा है, और थर्ड ऑक्सीजन कम है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन दे दी। नेक्स्ट जो उसमें ऑलरेडी इस वक्त ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है उसके लिए क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स को ब्रोंकोडायलेटर देंगे। थर्ड इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आप क्या देंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी। फोर्थ ये है नेक्स्ट ये अटैक होने को रोकने के लिए क्या देंगे? नेक्स्ट अटैक से रोकने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। अब मैंने 4 चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बीटा 1 एगोनिस्ट से। The albuterol, terbutaline, metoprolol, they are the mainstay of the treatment of the acute asthma। बहुत एक्सेलेंट किस्म के इसके इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि जो ही आप इसको देंगे दे मे लीड टू कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी। हार्ट रेट बेटे बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी, पल्स बेटे उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में फिर हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट इट मे एलिविएट 70% ऑफ द अटैक्स। ठीक है, साल्मेट्रोल इज अ बेटर ऑप्शन, इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग। लेकिन मैंने आपको इनिशियल अपने लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, जो ड्रग जितनी लॉन्ग एक्टिंग होगी उतनी लेट ऑनसेट होगी। तो मैंने तो आपसे कहा था बेटा 3 से 4 मिनट है हमारे पास, हमें तो लॉन्ग एक्टिंग की जरूरत नहीं है इस वक्त, हमें शॉर्ट एक्टिंग की जरूरत है इस वक्त। तो शॉर्ट एक्टिंग बेटा कौन कौन सी हैं कि जिसका मैं उसे इनहेलर लूँ साथ ही उसका इफेक्ट आ जाए? साल्बुटामोल। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी मेडिसिन है, यू विल से साल्बुटामोल। लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, यू विल से साल्मेट्रोल। अब
among the beta agonists only. ठीक है, सो 3 से 5 मिनट में बेटा इसका इफेक्ट होता है एंड इट विल स्टे फॉर 4 to 6 आवर, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। ये इनहेलर देखा हुआ है आपने? अच्छा, ये बेटा ये इनहेलर है, ये इनहेलर है, ठीक है, ये स्पेसर है। स्पेसर का ये होता है कि जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं ये इसके अंदर ये 1 फीट का फासला होता है, कोर्स पार्टिकल इसके अंदर रह जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल सिर्फ वो इनहेलेशनल में जाएंगे। इनहेलेशनल में क्यों हम लेके जा रहे हैं? आईडी को लगा रहे हैं। बट मैंने अभी आपको बताया कि कार्डियोवैस्कुलर उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आईडी लगाऊंगा तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं उसे उस स्टैंडर्ड साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए उसे मैं रेस्पिरेटरी रूट से दे रहा हूँ, ये भी टॉपिकल रूट है, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये भी सेम पिक्चर है, ये वही बात है जो हमने पहले जो बात कर ली है, क्लासिफिकेशन की हम बात पहले हम कर चुके हैं, तो ये मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे सम अप कर दिया। इट्स अ वेरी गुड स्लाइड। बीटा टू एगोनिस्ट विल lead to the activation of the beta receptor of the bronchi and smooth muscle relaxation, ठीक है। अभी हमें 2 रिस्पॉन्स और भी अचीव करने हैं, हमने इन्फ्लेमेशन भी खत्म करनी है, हमने मैस सेल्फ स्टेबलाइज भी करना है, सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। बेटे ये टॉपिक थोड़ा सा ही लेंथी है, ठीक है, आज इसके टॉपिक में खत्म कर दूँ, अगर आप मुझे 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स, हम 11:35 पे हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आई प्रॉमिस हम इसको 11:35 पे हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। यस। ओके, हम कल